Yes, you can start. Okay, can I turn on my video? Yes, you can now turn on your video. Yeah. Okay. Hello and welcome everyone. Thank you for joining us for this webinar. It's the second part of the ABCs of thalassemia. And I'll start with a small introduction about BTF, and then we'll do an introduction about Dr. Lisa, and then we'll start. In the year 2019, Anshul Goyal, a thalassemia major himself, formed Boone Thalassemia Foundation, which was known as Team PACT. Team BTF is committed towards a single cause, which is eradicating thalassemia. We work hard every day towards this cause and to promote awareness about the disorder. We have a great team of volunteers who too are committed to our cause. Our founder has experienced enormous problems as a result of the disorder and wants to ensure that no one has to go through the same, and that's why we're here. In the early days of the foundation, we held thalassemia awareness sessions in schools, universities, and private institutions, and we were able to reach over 6,000 people in a span of 6 months through the awareness and prevention programs. We then switched to an online platform to spread the word and educate people after having a really positive reaction from the offline awareness programs, and we were able to contact over 20,000 people via like social media online. BTF now offers both online and offline awareness sessions like this one, as well as webinars for our warriors. In the month of May, we also had our first successful blood donation camp, and we established India's first thalassemia community, which is a group dedicated solely to thalassemia warriors. If anyone is not on it, you can contact any of us. And in partnership with the Vadodara Psychology Club, PTF has also initiated a self-help group for thalassemia warriors, and it's the first of its kind. We've got a lot of positive feedback so far, and we're looking forward to reaching our bigger goals. So please help us out, spread the news, and don't forget to donate blood, and also encourage others to do so, as we're having a hard time during the pandemic. Now we'll go to Dr. Lisa Balsara's introduction. She completed her MBBS from JJMMC Devanagare, Karnataka, and her MD of pediatrics from DVVPF Medical College, Ahmednagar, Maharashtra. She also enrolled into the Indian Academy Pediatrics Fellowship. Over her tenure of 2 years, she was thoroughly trained for comprehensive care of thalassemia and other hematology and pediatric fields. She has many achievements in her career, one of which is that she was awarded the best postgraduate in 2016 at DVVPF's Medical College. She has a large variety of expertise in diagnosis and management, such as comprehensive thalassemia care, palliative care, platelet and coagulative care, pediatric leukemia and lymphomas, and many more. Her vision is to provide her services to each and every hematology patient. She has many goals for the future. A few are to start comprehensive thalassemia daycare, to provide the best available treatment to patients at affordable costs, to form a hemophiliac society, and so on. Over to you, Doctor. Good evening. So we are already 18 plus participants now, which is a very, very good sign. So good evening, Bhumika. Thank you for the great detailed introduction. And thank you, Anshul, कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम मतलब इतने लोगों से घर पे बैठ के बात कर सकते हैं. एंड जो छोटी छोटी क्वेरीज होती है थैलेसीमिया की वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. सो इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग. एंड वडोदरा इज अ लवली सिटी एंड डेफिनेटली वी विल लाइक टू मीट इन पर्सन जितने भी लोग हैं. सो currently I am having a daycare center in Ahmednagar, which is giving catering services to 108 patients
and we are doing very good for जितने भी लोगों के लिए है वो सारे चीजें. And I am also working currently in Pune, so I am shifting to and fro and everything. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is let's learn ABC of thalassemia. हमने पार्ट 1 12th को कंप्लीट किया था एंड पार्ट 2 हम आज कंप्लीट कर रहे हैं. ये बहुत ही लंबा सेशन होने वाला है, मैं पहले से ही बता रही हूँ, बिकॉज इट इज गॉन स्ट्रेच्ड अ लिटिल बिट, बिकॉज बताना ही इतना है, समझना ही इतना है, तो उसको ऐसे करके समझाने में कोई मतलब नहीं है, अच्छे से ही समझाने में ये होता है. सो इन दिस फॉर्मेट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग थ्रू अ पीपीटी सेशन, ताकि आपको भी ये समझे कि मैं क्या बोल रही हूँ. Just a second, I'll just share my into a presentation mode. हम क्वेश्चन आंसर्स बाद में लेंगे क्योंकि we will finish this first and then we will go to the question answer form at the end. हमने बहुत बार ABC सीखा है, लेकिन हम जिन्होंने ABC सीखा है तब वो हार्डली 2 या 3 मैक्सिमम 3.5-4 साल में हमने सीखा है, लेकिन अभी तक वो ABC मुझे याद है कि कैसे A के बाद B आता है, U के बाद V आता है. तो इसीलिए हमें थैलेसीमिया का ABC सीखना है ताकि हम कितने भी बड़े हो जाए हम उसमें गलती ना करें. सो लास्ट टाइम वी हैड कंप्लीटेड टिल I. J से कुछ नहीं था, K से कैल्फर है जिसके बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं. So we'll start with L because my name starts with L. Okay, so we'll start with L. Am I audible or and my PPT is visible? Yes, ma'am. Yeah, so I'll continue. Yes, ma'am. Yeah, okay. So L से आता है liver and its complication. अगर आपको पता होगा कि हमने पहला ही सेशन इस पूरे टॉपिक पे लिया था, तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी. सेकेंड थिंग है लेबल प्लाज्मा एंड लेबल प्लाज्मा आयन, एंड थर्ड थिंग इज लिवर आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि लेबाइल प्लाज्मा आयन क्या होता है. अभी आप ये समझिए कि बॉडी में आयन है, मेरी बॉडी में आयन है, आपकी बॉडी में आयन है, लेकिन जब ये चीजें नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाती है तब प्रॉब्लम आती है. जब हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल 120 दिन बाद मरते हैं तो वो रेटिकुलो एंडोथेलियल मैक्रोफेज में जाते हैं और उससे आयन छूटता है और बाकी के सेल जो डैमेज हो जाते हैं. ये जो ट्रांसफेरिन फॉर्म होता है वो कभी कभी गट एब्जॉर्ब कर लेता है, या तो फिर बाकी का वो पैरेन्काइमा में मतलब स्किन के या फिर सॉफ्ट टिश्यूज की बॉडी पे जाके बैठ जाता है. जब ये ट्रांसफेरिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर आपका HB 9 से कम रहता है तो ये गट जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाता है और ये बाहर नहीं जाता बॉडी के, ये बॉडी में ही घूमता रहता है. तो क्या होता है, तो फिर ये होता है कि अगर ये कंट्रोल्ड लेवल में आयन है, जैसे कि अगर आपका आयन अपटेक उतना है और उतना ही आयन आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है तो उसको बोलते हैं कंट्रोल लेवल में, तो फिर वो टॉक्सिक नहीं बनता, वो टॉक्सिक और वो वैसे एक्सक्रीट हो जाता है. लेकिन जब ये अनकंट्रोल्ड अपटेक में रहता है तब ये बॉडी आयन में मतलब ये सारी चीजें लिवर पैंक्रियाज और ये जगह में बॉडी में रह जाती है और ये फ्री रेडिकल जनरेट करती है. फ्री रेडिकल मतलब हानिकारक पदार्थ जो आपके सेल को जाके डैमेज करते हैं. तो ये लेबाइल आयन हानिकारक पदार्थ ये करती है, उसकी वजह से लिपिड जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होता है, ऑर्गन डैमेज के बाद ये सेल डेथ होने लगता है. ये एक चीज हो गई कि बॉडी के अवयव ठीक से काम नहीं करेंगे. दूसरी ये होता है कि ये इस मैकेनिज्म से फाइब्रोसिस होने लगता है, जैसे कि आपने सुना है लिवर फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस मतलब सिकुड़ जाना, लिवर के सेल्स सिकुड़ने लगना और वो धीरे धीरे उनके फंक्शन लॉस करने लगता है. जैसे कि फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद सिरोसिस होता है, उसके बाद फिर वो अगर बहुत ही खराब हो गया तो वो सेलुलर कैंसर भी हो सकता है. अभी जब आयन ओवरलोड होता है मतलब जो बॉडी का क्षमता है उससे ज्यादा आयन अपनी बॉडी में हो जाता है, उसकी वजह से
हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, ऑक्सीजन रिलेटेड टिश्यू डैमेज होने लगता है, और फिर एंड ऑर्गन टॉक्सिसिटी, मतलब हर एक ऑर्गन में जाके वो टॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिक मतलब पॉइजन, पॉइजन मतलब जहर, जहर मतलब चीजों को खराब करना। तो क्या होता है, कार्डियक फेलियर होना, लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस, कैंसर जो हम बता रहे हैं, ये अवयवों में जाके, ग्रंथियों में जाके रुक जाना, जिसकी वजह से आपका थायराइड पिट्यूटरी ठीक से ना काम करे, जिसकी वजह से थैलेसीमिया में डायबिटीज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इनफर्टिलिटी होना, मतलब आपके सेक्स हार्मोन्स ठीक से काम नहीं करना, आपके सेक्स ऑर्गन्स ठीक से डेवलप नहीं होना, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस होना, जैसे कि आप बच्चों में हाइट ना बढ़ना, वेट ना बढ़ना, आप जितना भी खाओ, जितने भी मेहनत करो, क्योंकि आपके एंडोक्राइन हार्मोन डिस्टर्ब है, वो रिजल्ट नहीं देंगे। तो क्या करता है आयरन ओवरलोड अलग अलग ऑर्गन में जाके? पिट्यूटरी ऑर्गन जो होता है वो सारे हॉर्मोन्स का सोर्स रहता है, मतलब जैसे कि गंगोत्री का सोर्स हिमालय है, वहां से गंगा बहती है, तो सारे हॉर्मोन्स यहाँ से बनते हैं। जैसे कि इम्पेयर्ड ग्रोथ होना, आपका ग्रोथ, हाइट, वेट ना बढ़ना, आपकी मतलब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, मेंसेस ना आना, वो सारी चीजें आपको इम्पेयर्ड ग्रोथ, और इनफर्टिलिटी करना। थायराइड मतलब जैसे कि आपने सबने सुना है थायराइड का टेस्ट करना पड़ेगा, थायराइड के ऊपर एक छोटा सा हाइपोपैराथायराइड होता है, तो वो दोनों चीजें ठीक से काम नहीं करना। हृदय में जाके जब ये आयरन बैठ जाता है तो हृदय बहुत ज्यादा फूल जाता है, इसकी वजह से आपको कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। लिवर का हमने जैसे सुना, लिवर फाइब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस होता है, और फिर उसमें कैंसर हो सकता है। पैंक्रियाज में अगर आयरन ओवरलोड होता है तो उसमें डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। गोनाड्स में, मतलब जहाँ पे आपके सेक्सुअल अवयव है, वो मतलब वो चीजें छोटी होती है या वो ठीक से काम नहीं करती है, आपको बहुत ज्यादा आगे चल के तकलीफ दे देती है। ठीक है, और ये अगर हमने ये आयरन टॉक्सिसिटी समय पे उसको ध्यान नहीं दिया, समय पे उसको अगर हमने दवाइयां चालू नहीं की और उसको कंटिन्यू नहीं किया, तो फिर ये सारा फेलियर में जा सकता है, जो इरिवर्सिबल हो जाएगा, और जिसको आप किसी भी पदार्थ या मेडिकेशन से बचा नहीं पाओगे। अभी द सेकेंड पॉइंट इज, हम आयरन ओवरलोड कैसे असेस करते हैं, हमें कैसे पता चलता है आयरन ओवरलोड क्या क्या होता है। एक तो ट्रांसफरेंस सैचुरेशन देखते हैं हम, सीरम फेरिटिन जो हम 3 या 6 महीने में करते हैं, एक होता है LIC, और एक होता है हम T2 स्टार MRI से भी ये देख सकते हैं। तो LIC क्या होता है, हम लिवर बायोप्सी करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप मान लो अगर आपके कुएं को पानी को जांचना है, तो इंस्टेड ऑफ कि हम कुएं के आसपास की जमीन को देखें, हम कुएं में से पानी निकाल के देखें। मतलब हम उस लिवर में सुई डाल के, वो सुई से हम लोग मतलब वो टुकड़ा लेंगे लिवर का, और उसमें कितना आयरन है वो देखेंगे। तो उसके फायदे क्या है, एक तो वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा, मतलब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कितना आयरन ओवरलोड है। ठीक है, और उसमें हमें मतलब वो एकदम ही 100% सरकार मान्य टेस्ट होगा कि इतना ही आयरन ओवरलोड है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें ना एक सुई टोचने का प्रोसीजर रहता है, इसमें बच्चे को दर्द हो सकता है, इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कभी कभी सिरोसिस की वजह से इसमें रिपोर्ट में गड़बड़ आ सकती है। अलग अलग लेबोरेटरी के अलग अलग स्टैंडर्ड होंगे, मतलब आपने किसी और लेबोरेटरी से इस साल किया, नेक्स्ट लेबोरेटरी से उस साल किया, तो उसमें तालमेल में 19-20 का डिफरेंस आ सकता है, और इसको फॉलो अप में डिफिकल्टी होती है। और इसके कंपैरिजन में सीरम फेरिटिन, आयरन ओवरलोड, T2 स्टार MRI, ये सारी आसान चीजें हैं जिसमें बच्चे को सुई टोचने का काम नहीं करना पड़ता, और उसमें ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन ये सारी चीजें नहीं होती। तो चेलेशन थेरेपी जैसे हम जानते हैं कि आप अगर डेसिरॉक्स, डेफ्रिप्रोन ये सारी चीजें लेते हैं, वो ये टॉक्सिक आयन के साथ मिलता है, ये उसके साथ मिल के उसके साथ जुगलबंदी करके आपको यूरिन से या फिर आपके टॉयलेट से ये बाहर जाता है। ये पूरा मैकेनिज्म है आयन केलेशन का। ठीक है, अभी हम आए हैं M पे। अभी जैसे कि आपने देखा कि थैलेसीमिया में अलग अलग ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन है और उसमें आपको ध्यान देना, आपको सारे ऑर्गन पे ध्यान देने हैं। तो इसलिए सिर्फ ट्रांसफ्यूजन देना इसका इलाज नहीं है, इसको लगता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सिर्फ एक मतलब सिर्फ हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाया और कॉम्प्रिहेंसिव केयर नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो ये उसका इलाज नहीं होता।
तो कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में आपका पूरा होलिस्टिक अप्रोच बनाएंगे? दैट इज एक हेमेटोलॉजिस्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो आपके एचबी के हिसाब से, आपके सीरम फेरिटिन के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से, आपके सीबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से आपके आयन चेलेशन में ऊपर नीचे करे। एक स्पेशलाइज्ड नर्स रहती है जो सिर्फ डे केयर के लिए रहती है, जो सारे ट्रांसफ्यूजन को सुपरविजन करती है, पेशेंट को एजुकेट करती है, पेशेंट के आगे पीछे की कहानियां सुनती है, उसको सपोर्ट करती है। एक कार्डियोलॉजिस्ट लगता है क्योंकि इसमें हार्ट ओवरलोड के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए कार्डियोलॉजिस्ट को हम हर साल 2D को करते हैं। अगर आपकी वही 7 साल से ऊपर है तो T2 स्टार MRI करते हैं, सीरम फेरिटिन का रिपोर्ट इनको दिखाते हैं, वो आपके हृदय के साउंड्स के हिसाब से आपको ये करेंगे कि कैसे आपकी चेलेशन को आगे पीछे करना है। एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट लगता है, जिसको हम लोग बहुत प्यार से बोलते हैं कि हाइट वाले डॉक्टर है, जो हाइट को देखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि थायराइड, पैराथायराइड, आपके ग्रोथ हार्मोन, आपके सेक्सुअल हार्मोन, वो अलग अलग चीज से ये होते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ साथ जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट भी लगेगा, जिसके लिए आपको इनफर्टिलिटी या फिर प्रेगनेंसी इश्यूज के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। लिवर 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 इतना बोला है तो हेपेटोलॉजिस्ट भी लगता है, जो आपके सारे हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारी चीजें देखता है। फिर आपके लिवर का साइज ये करता है, आपके LFTs को देखता है, उस हिसाब से आपको आगे पीछे की दवाइयां देता है। ऑब्स्टेट्रिशियन लगता है, जबकि मेनली ये Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There Right. was a glitch from my end. Okay, no issues. I'll continue. Yes, ma'am. Please proceed. सो एक साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर रखता है, क्योंकि कभी कभी ना डॉक्टर से आप सब कुछ बता नहीं पाते हो, कभी कभी थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है, तो आप एक ये सारी चीजें आप एक अपने सोशल वर्कर से या फिर अपने साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो। आपके जो एप्रीहेंशंस है, आपकी जो डर है, आपकी जो दवाई में आपको तो दिक्कतें आ रही है, वो ये सब सॉल्व कर सकते हैं। हमने बहुत एम्फेसिस किया है एक डेंटिस्ट पे कि आपका डेंटल हाइजीन थैलेसीमिया में इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि आयरन ओवरलोड की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें अगर हम डेंटल हाइजीन इग्नोर करेंगे तो दांतों के बीच में गैप आना, आपके दांत आगे आ जाना, दांतों में कैरीज बहुत कॉमन है आपके, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाना, पेरोटाइटिस बोलते हैं। कभी कभी आयरन ओवरलोड की वजह से यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, जो काफी दर्दनाक रहती है। एक फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है टीम में, क्योंकि वही आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं 30 दिन की, 60 दिन की, उसके साथ फॉलिक एसिड, कैल्शियम। हम भी समझाते हैं आपको मेडिकेशन कैसे लेना है, एक फार्मासिस्ट आपको समझाता है कैसे लेना है। डाइटिशियन एक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अगर इतना ज्यादा आयरन आयरन हम बोल रहे हैं, जो आयरन ओवरलोड हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही आयरन अगर आप लोग गुड़ के फॉर्म में, दाढ़ीम के फॉर्म में, मतलब हरी सब्जियों के फॉर्म में अगर आप घर पे वो सब खा रहे हो, तो फिर वो सारी मेहनत वो खाने की ही तौर पे वेस्ट जाएगी। इसीलिए हर बार डाइटिशियन से मिलना, हर बार अपना डाइट डिस्कस करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एन से है न्यूट्रोपीनिया। जैसे कि हम बोलते हैं कि ब्लड चढ़ाने से पहले सिर्फ HB लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि कुछ कुछ डे केयर में या कुछ कुछ जगहों पे हमने ऐसा देखा है कि सिर्फ HB लेवल दे देते हैं और पूरा CBC रिपोर्ट नहीं देते। तो हमें WBC की भी जरूरत पड़ती है। WBC वो सेल होता है जिसको हम पांद्रे सेल या व्हाइट सेल्स बोलते हैं, जिसको उसमें 5 तरह के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, ये करके। न्यूट्रोफिल जो होता है वो इन्फेक्शन से लड़ता है। जब भी आपको इन्फेक्शन होगा बॉडी में तो WBC काउंट बढ़ जाता है और उसमें से न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतना ज्यादा चेलेशन लेने से न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, मतलब न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाते हैं।
और आपको अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं तो उसको एग्रेनुलोसाइटोसिस बोलते हैं। एग्रेनुलोसाइटोसिस जब होता है तब बच्चे की अंदर की इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं कि शरीर की प्रतिकारक शक्ति जिससे वो इन्फेक्शन से लड़ता है, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से उसको सीवियर इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये कभी कभी कैल्फर लेने से ये सारी चीजें हो सकती है। कैल्फर लेने से प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं, कैल्फर लेने से न्यूट्रोफिल काउंट भी कम हो सकता है। इसीलिए हम एक न्यूट्रोफिल काउंट का अंदाज रखते हैं, जैसे बोलते हैं एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। जब हम सीबीसी करते हैं तो हम आपका एएनसी भी चेक करते हैं। एएनसी अगर एक लेवल से कम है और आपको इन्फेक्शन के सिम्टम है तो हम आपका कैल्फर बंद कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ मैं डिसाइड कर सकती हूँ या आपका हेमेटोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकता है कि आपका कैल्फर बंद कब करना है। आप अपने मन से चिलेशन बंद नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको फीवर है, सोर थ्रोट है, माउथ सोर्स है, फ्लू लाइक सिम्टम्स है, या आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, उनको बोलिए ये आपके सिम्टम्स है, सीबीसी कराइए, फिर आपके चिलेशन पे निर्णय लिया जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां कमजोर होना। हमारी हड्डियां क्यों कमजोर होती है? एक तो हमें एचबी लेवल हमारा मेंटेन नहीं, उस वजह से बहुत बॉडी काम कर रही है लेकिन ब्लड बन नहीं रहा। दूसरी ओर से हम इस अनीमिया को कॉम्बैक्ट करने के लिए चढ़ा रहे हैं ब्लड, और हमारी बॉडी में आयरन ओवरलोड हो रहा है। और ये सारा जब ब्लड बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश करता है तब बोन मैरो एक्सपांड हो जाता है। इन सब के चक्कर में अनबैलेंस्ड बोन टर्नओवर होता है। अनबैलेंस्ड बोन टर्नओवर होना मतलब एक होता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी और एक होता है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी मतलब हड्डियों का बनना, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी मतलब हड्डियों का टूटना। ये सब आयरन ओवरलोड, बोन मैरो एक्सपेंशन की वजह से इन दोनों की जो नॉर्मल लेवल में चलना चाहिए वो ऊपर नीचे हो जाता है, और इस वजह से हड्डियों की बोन मिनरल डेंसिटी मतलब जितनी मजबूती होनी चाहिए उतनी नहीं होती, क्योंकि हम अपने बच्चों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम बीमार हो, तुम्हें थैलेसीमिया है, तुम बाहर घूमने नहीं जा सकते, तुम खेलकूद नहीं कर सकते। इसकी वजह से इन बच्चों का सन एक्सपोजर कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, मसल वेयर एंड टेयर कम है। ये सब में जाने अनजाने में हमने उनका विटामिन डी लेवल जो है वो जाने अनजाने में कम कर दिया है, और ये सब जो है वो बोन को कमजोर कर रहा है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस वो बोलते हैं जिसमें बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है और फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये डेक्सा स्कैन में हमें बताया जाता है कि बोन मिनरल डेंसिटी आपका कितना है, जो एसेस करता है लंबर स्पाइन को, जो आपकी रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं वो, और फेमोरल नेक को मतलब जो आपका पैर है उसका जो सबसे बड़ा बोन है उसका जो हेड है उससे। अगर वो 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन से कम है मतलब आपको ऑस्टियोपेरोसिस है, लेकिन अगर वो 2.5 से बीच में है तो उसको ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, जिसको हम विटामिन डी लेवल से या एक्सरसाइजेस से ही ये आगे पीछे मतलब इस पे हम इंटरवीन कर सकते हैं। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लगेगी। ये जो चीजें मैं बोल रही थी कि बोन बनना और बोन फॉर्मेशन और बोन को ये करना, ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो आपको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन रेजिम मतलब आपका एचबी 9 से 10.5 के अंदर आपका एचबी प्री ट्रांसफ्यूजन एचबी रहना चाहिए। उसके लिए आपको अगर हर 21 दिन में भी ब्लड लेना पड़े या उससे पहले भी लेना पड़े तो आप ये ट्रांसफ्यूजन रेजिमेंट अपने डॉक्टर के साथ बना सकते हैं। आपको प्रॉपर चलेशन थेरेपी लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हर बार हर साल लेक्सा करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करेगी, तभी आपका ये बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो मेंटेन रहेगा, और उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी पी से आता है प्लेटलेट काउंट। जैसे भी हमने बोला कैल्फर में कभी कभी प्लेटलेट काउंट आपके कम हो जाते हैं, थैलेसीमिया की जो संधि है उससे भी प्लेटलेट काउंट कम होते हैं। पी से एक आता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और पी से आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया, ठीक है। अभी किसी किसी बच्चों में तिल्ली निकाल दी गई होती है जिसको बोलते हैं हम स्प्लेनेक्टमी,
और ट्रांसफ्यूजन रेजिमेन और आयरन ओवरलोड की वजह से, क्योंकि आप अगर ट्रांसफ्यूजन रेजिमेन आपका गड़बड़ा रहा है और आप HB9 to 10.5 नहीं रख रहे हैं, तो आपकी आरबीसीज में चेंजेस आने लगेंगे, जो टॉक्सिक आरबीसीज बन जाएंगे, जो अच्छे आरबीसीज नहीं रहेंगे। और इन सब के चक्कर में एंडोथेलियल डैमेज होता है, मतलब ऊपर ऊपर की स्किन में डैमेज होने लगता है। इसकी वजह से स्प्लेनेक्टमी निकालने की वजह से आपने देखा होगा कि कुछ कुछ आपके फ्रेंड्स के प्लेटलेट बहुत ज्यादा 10 लाख 12 लाख ऐसे 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 चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो बॉडी में जो ब्लड है उसमें थ्रोम्बोसिस, मतलब ब्लड बहुत जल्दी विस्कस हो जाना और झाड़ा ब्लड हो जाना, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। इसीलिए अगर आप देखोगे कभी कभी किसी किसी बच्चों में जब हम सुई लगाते हैं तो उसका दाग बहुत दिनों तक दिखता है। उनका जब हम कोगुलेशन फैक्टर्स करते हैं, पीटी, एपीटीटी, आईएनआर, वो सारा डिरेंज्ड आता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि ये सारी चीजें थ्रोम्बोसिस वगैरह, ये प्लेटलेट के आपको सुधारना पड़ेगा। इन सब के लिए आपको आयरन ओवरलोड जैसे कि चिलेशन की मात्राएं ठीक रखनी पड़ेगी, ट्रांसफ्यूजन आपको ठीक से लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब एकत्र होगी तभी उसको हम लोग सुधार सकेंगे। अभी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अभी एक चीज समझिए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्डियक बिकॉज ऑफ आयरन ओवरलोड इन द बॉडी। क्योंकि आयरन ओवरलोड होता है, आयरन हार्ट लिवर में डिपॉजिट हो जाता है। इसी वजह से जैसे कि हमने आगे देखा हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स बनते हैं, इसकी वजह से जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है वो डैमेज होने लगते हैं। ये जो है इसकी जब आरबीसीज को जब हम ब्लड नहीं चढ़ाते और जब हम बराबर से फॉलिक एसिड वगैरह नहीं लेते, तब ये ब्लड टूटने लगता है। ये जब ब्लड टूटता है तब उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं वो कम बायो अवेलेबल रहते हैं। अनीमिया की वजह से जब ब्लड टूटता है तो एचबी भी टूटेगा, एचबी टूटेगा मतलब अनीमिया होगा, अनीमिया होगा मतलब हार्ट का बराबर स्टेट नहीं चलेगा। तो इन सब की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ जाना। लेकिन जब ये पल्मोनरी पार्ट के साथ इन्वॉल्व होता है, इसमें लंग और हार्ट दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होना और एब्नॉर्मल मतलब हार्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लगता है। इस वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन बनता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब अभी भी टाइम होता है हमारे पास कि हम मेडिकेशन से वो हाइपरटेंशन को रोक सके। इरिवर्सिबल हार्ट मतलब हार्ट का इतना डैमेज हो गया है कि अभी कुछ भी करके उसको सिर्फ हम सस्टेन ही कर पाएंगे, वो हार्ट टिश्यू को वापस नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी अगर ब्लड बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको हम एंटीकोगुलेंट एस्पिरिन वगैरह चालू करते हैं। ट्रांसफ्यूजन को हम लोग कम कम दिनों में देते हैं, 7 दिन 10 दिन ऐसे ऐसे करके HB 9 तक मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इरिवर्सिबल है और बहुत ज्यादा है तो उसको हमें सिल्डेनाफिल वगैरह टैबलेट्स भी चालू करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी प्रिवेंशन कैसे करना है। अगर आप थैलेसीमिक हो, अगर आपके बच्चे थैलेसीमिक है, तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने भाई बहनों की टेस्ट कराइए, उनके एक्सटेंडेड फैमिली में टेस्ट कराइए। अगर आपकी यंगर जनरेशन है जिसकी शादियां होने वाली है, उनका टेस्ट कराइए। ये थैलेसीमिया का जो डिजीज है वो प्रिवेंट हो सकता है, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। थैलेसीमिया एक, अगर आपकी नॉलेज थोड़ी सी रहेगी ब्लड टेस्ट के बारे में, तो भी आप उसको, जैसे कि HB आता है उसके नीचे MCV आता है। ठीक है, MCV अगर 80 से कम है और MCH 27 से कम है तो प्लीज उसका HPLC कराइए, उसमें आपको थैलेसीमिया मिल सकता है। बहुत छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती है जिसमें थैलेसीमिया का हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थैलेसीमिया है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपका एक बच्चा ऑलरेडी थैलेसीमिया है, प्लीज एक एंटीनेटल टेस्ट कराइए। एंटीनेटल टेस्ट में आपके जो अभी के बच्चे हैं थैलेसीमिक, उसका एक जेनेटिक म्यूटेशन कराना पड़ेगा। वो जेनेटिक म्यूटेशन आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके घर में रहे बच्चे का भी चेक हो सकता है। ठीक है, यही एक तरीका है थैलेसीमिया को रोकने का। पहले तो ये है कि ये शादी से पहले ही HPLC करा ले, लेकिन इतना अवेयरनेस नहीं है कि थैलेसीमिया शादी
थैलेसीमिया स्टेटस शादी के पहले चेक होता है। इसीलिए अगर आपका ऑलरेडी एक बच्चा है तो आप अपने दूसरे बच्चे को नॉर्मल, या आप चाहते हो कि दूसरे बच्चे को ऐसी तकलीफ ना हो, तो एक एंटीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट भी करा सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग में जैसे कि अभी हमें भी पता है कि अगर थैलेसीमिया माइनर फादर है या थैलेसीमिया माइनर मदर है, तो हर एक प्रेगनेंसी में, हर एक मतलब जितनी बार आप प्रेग्नेंट होगे उतनी बार 25% चांस है कि आपका थैलेसीमिया मेजर बच्चा हो सकता है। 50% चांस है कि वो आपकी तरह सिर्फ माइनर रहे, और 25% चांस ये भी है कि वो नॉर्मल रहे, जिसमें कुछ भी ना हो, एक नॉर्मल इंसान की तरह वो जन्मे। लेकिन ये तो हम लक पे नहीं छोड़ सकते, हमें इसके लिए टेस्ट कराना पड़ेगा। और प्रेफरेबली ये है कि जैसे आप कंसीव हो, उससे आप लोग विद इन जैसे कंसीव हो, आप अपने हेमेटोलॉजिस्ट को बताइए कि मैडम मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी आगे कैसे करना है वो हमें बता दीजिए, तो वी विल गाइड यू फर्दर। ठीक है। अभी प्रीनेटल डायग्नोसिस में 2 चीजें होती है, एक्चुअली 3 चीजें होती है, पर कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग हम बहुत रेयरली फॉर्म में करते हैं। सो 2 चीजें ये होती है कि क्रॉनिक विलस सैंपलिंग। अभी आप देख रहे हो कि ये गर्भपात है, बच्चा यहाँ पे है, 10 से 15 वीक मतलब 2.5 मंथ से 3.5 मंथ के बीच में, एक महीना 4 हफ्तों का होता है वैसे करके। तो अगर बच्चा यहाँ पे है तो हम यहाँ से उसका सैंपल ले रहे, बच्चे को कुछ इफेक्ट नहीं होता। किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका ये डेट चुक गया है तो हम उसको एमिनोसेंटेसिस में भी कर सकते हैं, विच इज 16 to 18 वीक्स में। ठीक है, प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद, जिसमें यहाँ से हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें भी इस बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बच्चे का जो सैंपल लिया जाता है उसको हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। वो जेनेटिक टेस्टिंग आपके पहले बच्चे का या फिर माता पिता के जेनेटिक म्यूटेशन से चेक किया जाएगा। अगर ये मेजर होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, माइनर होता है या नॉर्मल होता है फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और आपका डिसीजन आपको बिना बताए नहीं लिया जाएगा, वो आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ डिस्कस किया जाएगा, फिर ही ये प्रेगनेंसी के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। ये एकदम ही हार्मलेस प्रोसीजर है, इसमें माता को कोई तकलीफ नहीं होती, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो फ्री में या नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 4 to 5,000 करते हैं। आपको बस इतना करना है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो, आपको फर्स्ट चीज डे केयर इंचार्ज को या डॉक्टर को जाके बतानी है कि मैडम अभी हम आप प्लीज हमें आपको गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है। कब कब जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है? जैसे ही बच्चा थैलेसीमिया मेजर डायग्नोस होता है तब तक। दूसरी चीज, जब बच्चे का मतलब बढ़ाव होता है तब उसको जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी में जरूरत पड़ती है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ये डॉक्टर की सलाह से जेनेटिक काउंसलिंग कराइए। ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग में जैसे कि मैंने बोला कि एक्सटेंडेड फैमिली की बहुत जरूरत होती है। हर एक फैमिली मेंबर का थैलेसीमिया का जांच होना चाहिए अगर आपके घर में एक थैलेसेमिक है। ठीक है। रिस्क फैक्टर, आपका मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह ये होना है। हर एक चीज के लिए हम हमेशा परमिशन लेते हैं, करने से पहले, करने के टाइम पे, करने के बाद आपको हर एक चीज लिखित में दी जाएगी, हर एक चीज का आपका साइन होगा, आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ थैलेसीमिया का जांच नहीं करते, अगर हमें लगता है कि इसमें और सिंड्रोम भी इन्वॉल्व है तो हम उसका भी जांच करते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग सिर्फ थैलेसीमिया के लिए नहीं होती, बहुत और चीजों के लिए भी होती है, जैसे कि बोन डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स, इन सब चीजों के लिए भी होती है। डाउन सिंड्रोम के लिए भी होती है, जैसे कि हम क्वाड्रुपल टेस्टिंग या ट्रिपल टेस्टिंग बोलते हैं। अभी तो ये बहुत ही नॉमिनल टेस्टिंग है जो हर प्रेगनेंसी में की जाती है। आर फॉर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो सारी चीजें रेडियोलॉजी में की जाती है, जैसे कि एक्सरे किया जाता है, कभी कभी स्कल का एक्सरे करते हैं हम, चेस्ट का एक्सरे करते हैं, लॉन्ग बोन्स मतलब हाथ और पैर का एक्सरे करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं एब्डोमेन की, T2 स्टार MRI करते हैं, और फिर डेक्सा स्कैन करते हैं। ये सारी चीजें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आती है। और आर से होता है रिएक्शंस। आपको कभी ना कभी इतने सारे ट्रांसफ्यूजन्स में रिएक्शंस हुए ही होते हैं, तो देखते हैं क्या होते हैं ये रिएक्शन।
रिएक्शंस वो होते हैं जो आपको फर्स्ट 24 आवर्स में आ सकता है। ऐसा नहीं कि जब आपको ब्लड चढ़ाया जैसे स्टार्ट किया वैसे आया। दैट इज वेरी एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये जो पहले 15 मिनट से स्टार्ट होते हैं या तो 24 आवर्स के बाद आ सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि 24 आवर्स के बाद भी आ सकते हैं। दोज आर कॉल्ड एज डिलेड रिएक्शन। तो क्या होते हैं एक्यूट रिएक्शन? एक तो होता है एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जैसे कि आपको पता चलता है कि जैसे भी किसी को ब्लड चढ़ाया सांस फूलने लग जाता है, लाल लाल शरीर हो जाते हैं, बॉडी पे चट्टे आने लग जाते हैं, वो सारे होते हैं एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। और फिर होता है ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी, एनाफिलेक्सिस, ट्रांसफ्यूजन ओवरलोड। कभी कभी आपके वजन के अनुसार ब्लड ना दिया जाए और बहुत ज्यादा ब्लड एक ही सिटिंग में दिया जाए तो वो ओवरलोड हो सकता है, छाती का फूल जाना, सांस का फूल जाना, ये सारी चीजें दी जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए कुछ कुछ डे केयर सेंटर आपको बीच में लैसिक्स का इंजेक्शन देते हैं, या तो पहले या बाद में लैसिक का इंजेक्शन देते हैं, या तो फिर एक्यूट लंग इंजेक्शन हो जाना। ठीक है। अभी एक्यूट रिएक्शन के फीचर्स क्या होते हैं? बुखार आना, ठंडी बजना, ऐसे चट्टे आ जाना, सांस फूल जाना, अचानक से सुस्त पड़ जाना, हृदय के धबकारे बढ़ जाना, यूरिन बहुत कम आना, या तो ब्लीडिंग कहीं से होना और या तो कोलैप्स हो जाना। माइनर रिएक्शन में ये होता है कि अर्टिकुलर रैश, लाल चट्टे आना या फिर थोड़ा सा बुखार आना। तब हम क्या करते हैं? हम ट्रांसफ्यूजन का स्पीड कम कर देते हैं, थोड़ी देर रोक देते हैं, आपको एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस देते हैं और फिर आपको या तो बुखार है तो पैरासिटामोल देते हैं। लेकिन अगर मेजर आना, जैसे कि बहुत 103, 104 फीवर आना, सांसें फूल जाना, SpO2 ड्रॉप हो जाना, बीपी ड्रॉप हो जाना, हृदय के धबकारे 150, 160 ऐसे हो जाना, यूरिन कम हो जाना, पेट में दर्द होना, शॉक में चले जाना, कहीं से ब्लीडिंग होना, तो हम ट्रांसफ्यूजन चेक करते हैं, सारी चीजें वापस से चेक करते हैं, IV एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, आपको एडमिशन कराते हैं और ये सारी चीजें हॉस्पिटल में मैनेज की जाती है। ठीक है। तो इतनी तरह के रिएक्शन आते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हेमोलाइटिक रिएक्शन आता है जो आपके घर जाने के बाद आता है, जैसे कि यूरिन का लाल होना। ठीक है। इस वजह से आपको हर एक बार यूरिन चेक करना है ट्रांसफ्यूजन के बाद। अगर आपकी यूरिन रेड हो रही है तो आपके डॉक्टर को बताना है। इसका मतलब ये है कि आपको हेमोलाइसिस हो रहा है, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसमें हम DCT, ICT चेक करते हैं और आगे हम लोग यूरिन डिपस्टिक चेक करते हैं और ये सारी चीजें हमें नोटिफाई करनी पड़ती है और आपको ट्रीटमेंट में चालू करना पड़ता है। इसका क्या आड़ असर होगा? अगर आप ये नहीं बताओगे तो धीरे धीरे आपकी किडनी इंजरी हो जाएगी। इसके लिए हमें थोड़े बहुत कैल्फर या उसके डोजेस भी चेंज करने पड़ेंगे। आपका क्यों ऐसा हो रहा है ये देखना पड़ेगा और शायद आपको प्रेडनिसोलोन को छोटे से कोर्स पे भी डालना पड़ेगा। इस वजह से आपको बहुत निराशा भी हो सकती है क्योंकि इसमें आपका HB मेंटेन नहीं रहेगा। मतलब आप 2 बैग चढ़ा रहे हो, 3 बैग चढ़ा रहे हो, फिर भी आपका HB 6-7 ही रहेगा क्योंकि वो यूरिन में जा रहा है आपका ब्लड। इसीलिए ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं होती कि ब्लड चढ़ाने के बाद लाल यूरिन होना नॉर्मल नहीं होता। हाँ, कैल्फर से लाल यूरिन होता है, लेकिन दैट इज कैल्फर का रिएक्शन, दैट इज नॉट ब्लड इन यूरिन। तो ये दोनों का चीजें का डिफरेंस समझिए। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो प्लीज आप हमें बताइए या फिर आपके डे केयर के डॉक्टर को बता सकते हैं। स्प्लीनोमेगाली, ये बहुत कॉमन है। स्प्लीनोमेगाली मतलब स्प्लीन, तिल्ली जो होती है, किसी भी चीज के पीछे मेगाली आता है मतलब उसका नॉर्मल साइज से बढ़ जाना, मतलब मेडिकल वर्ड में बढ़ जाना बोलते हैं। जैसे कि हेपेटोमेगाली मतलब लीवर का बढ़ जाना, कार्डियोमेगाली मतलब हार्ट का बढ़ जाना, स्प्लीनोमेगाली मतलब स्प्लीन का बढ़ जाना। क्योंकि हमारे RBCs इनएफेक्टिव ये है, अनीमिया हो रहा है, हमें आयरन अलग अलग जगह पे जाके फॉर्म हो रहे हैं, इसकी वजह से हमें हो रहा है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, मतलब हमारे बॉडी के अवयव बहुत मेहनत कर रहे हैं ब्लड बनाने में। इसकी वजह से हमें हो रहा है स्प्लीनोमेगाली, कि स्प्लीन का साइज बढ़ रहा है। और ये देखो, ये आपकी तिल्ली है, ये तिल्ली ऐसे बढ़ती है, मतलब ये आपकी जो नाभि होती है उस तरफ से बढ़ती है। ये कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसको हम मैसिव स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। और कभी कभी ये बहुत दर्द भी देती है, मतलब छूने से भी दर्द करता है। इसके लिए पहले, बहुत पहले स्प्लीनेक्टमी करते थे, ये स्प्लीन को निकाल देते थे। लेकिन ये स्प्लीन जो होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है।
मतलब ये इन्फेक्शन से लड़ता है, आपके ब्लड काउंट्स मेंटेन करता है, आपके आरबीसीज मेंटेन करता है। इसीलिए आज के जमाने में ना हम स्प्लीनेक्टमी नहीं कर रहे हैं। हम मतलब पूरा स्प्लीन नहीं निकाल रहे, कभी कभी हम पार्शियल स्प्लीनेक्टमी, ऐसा बहुत रेयर केसेस में कर रहे हैं। अगर आपको किसी ने स्प्लीनेक्टमी एडवाइस किया ना, तो प्लीज आप उसको एक बार वापस से चर्चा में लाइए, उसको वापस से आप बैठिए, एक डॉक्टर की सलाह लीजिए, कि क्योंकि आजकल जिससे पहले अगर आप देखे जाए तो हर एक का स्प्लीन निकाल देते थे। अभी हम ये एडवाइस नहीं कर रहे कि आप स्प्लीन निकालिए, क्योंकि हम देयर आर लॉट ऑफ बेटर वेज कि हम जो प्रॉब्लम है उसको डील कर पाए। अगर आपको किसी रीजन से स्प्लीनेक्टमी किया गया है तो उसके लिए आपको वैक्सीनेशन का बताया गया जाएगा 14 दिन पहले आपकी स्प्लीनेक्टमी के लिए। वो आपकी सर्जिकल टीम या मेडिकल टीम आपको एडवाइस करेगी। सो टी से होता है T2 स्टार MRI, जिसके बारे में अभी तो हमें काफी पता है। एंड अनदर थिंग इज ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड रिएक्शन, एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे T2 स्टार MRI। अभी T2 स्टार MRI का फायदा क्या है? फास्ट होता है, ठीक है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता है ये, और ये हम बार बार इसको चेक कर सकते हैं, मतलब साल में एक बार हम चेक कर सकते हैं, अपने पास एक वैल्यू रहेगा। ठीक है, इसका फॉलो अप बहुत अच्छा रहता है। दूसरी चीज ये है, जैसे कि हमने आगे बोला कि क्योंकि वो कुएं में से पानी निकालना जैसा नहीं है, तो ये हमें थोड़ा सा +-1 का वैल्यू देता है। ठीक है, और सबसे बुरा जो मुझे लगता है जिसको हम सुधार सकते हैं, कि T2 स्टार MRI ना हर जगह अवेलेबल नहीं रहता, इसीलिए काफी दिक्कत होती है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस, और ये मतलब एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे एक T2 स्टार MRI हो, ताकि हर इंसान को झंकारिया ना जाना पड़े एक T2 स्टार MRI कराने के लिए। नहीं, झंकारिया इज वेरी गुड, आई कंप्लीटली ट्रस्ट द रिपोर्ट, बट फिर अगर सोलापुर का भी इंसान वहां जा रहा है और बड़ौदा का भी इंसान वहां पे जा रहा है, सो उसको हम ये कर सकते हैं ना कि झंकारिया को अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। सो वी कैन बाय अ कैलिब्रेटेड कॉपी, और वी कैन इंसिस्ट आवर डे केयर टू बाय अ सॉफ्टवेयर which can be held at every center, and we can do a T2 star MRI. ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं होता, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन एक्सेस की वजह से जो ये जो सारी सेल्स है, कपर सेल्स बोलते हैं हम लिवर में, वो ब्लड को ले लेता है, और ये क्या करता है कि ये सिग्नल्स को पकड़ता है और MRI करता है। ठीक है, तो इसका कॉस्ट जरा ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे डे केयर कैंप्स लगा के या फिर NGO की मदद से उसको कम कर सकते हैं। अवेबिलिटी मतलब जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ज्यादा सेंटर्स पे नहीं होता, इसका लॉन्ग टर्म फॉलो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। ये किसी और चीज से अफेक्ट नहीं होता, अगर आपका आयरन ओवरलोड है तो है, और ये स्टैंडर्ड माना जाता है कि अगर आपका पास एक अच्छा T2 स्टार MRI है तो वी कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दैट। ठीक है, अगर आपने ब्लड डे केयर सेंटर में ध्यान दिया है, तो जब आपका एक ब्लड आता है ना, उस पर एक स्टिकर आता है जिसपे लिखा होता है HIV-1-2 नेगेटिव, VDRL नेगेटिव, सिफिलिस नेगेटिव, मलेरिया नेगेटिव, ये सारी चीजें नेगेटिव। मतलब ये क्या है कि वो ब्लड ना, ये सारे इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो ब्लड से ब्लड को ट्रांसफ्यूज होते हैं, उसको चेक किया जाता है, और अगर वो नेगेटिव होता है तो ही आपको दे सकते हैं। लेकिन इन सब वायरस का एक विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड मतलब वो बहुत छोटे होते हैं, और वो जो सीरम मार्कर्स है वो उसको पकड़ नहीं पाते। इसीलिए ये जो वायरल विंडो पीरियड होता है वो 14 से 21 दिन का होता है। अगर आपका ब्लड उससे पहले चेक किया गया होगा तो ये वो पकड़ नहीं पाएगा। इसीलिए नेट टेस्टेड ब्लड का इंपॉर्टेंस होता है। साइटोमेगलोवायरस और ये जो होता है, जब आप फिल्टर करते हो ब्लड को, तो वो फिर लुकोडिप्लीटेड हो जाता है, तो उसमें वो सब निकल जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं आपको कि फ्रेश ब्लड लीजिए। सेकेंड थिंग, आपका फिल्टर ब्लड होना चाहिए। अगर वो इनलाइन फिल्टर है तो वेरी वेरी गुड। अगर आपके पास इनलाइन फिल्टर मतलब जो लैब में ही फिल्टर होता है वैसी व्यवस्था नहीं है, तो एटलीस्ट आप फिल्टर खरीद के उसको फिल्टर वाला ब्लड देने की कोशिश कीजिए। उससे आपके एडवर्स रिएक्शंस भी कम हो जाएंगे, जो ट्रांसफ्यूजन ब्लड बॉर्न वायरल ट्रांसमिशन है वो भी कम हो जाएगा, और एटलीस्ट हम निर्धारित रहेंगे कि आपको सेफ ब्लड मिल रहा है। अब आता है ट्रांसप्लांट की तरफ। सो BMT ट्रांसप्लांट जो होता है वो हम 2 साल से 11 साल के बच्चे में प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस और
कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और सर्वाइवल के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, ये हम मोस्टली जो होते हैं वो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं। एलोजेनिक मतलब जब आपका मैच भाई बहन से मैच होता है तो, या फिर मम्मी पापा से मैच होता है तो। भाई बहन से एचएलए मैच होने के चांसेस 25%, और माँ बाप से आपका एचएलए मैच हो 12/12 वो है 2 से 3%। इसीलिए हम फूफा जी, मामा जी, कजिन्स का एचएलए मैच नहीं करते, क्योंकि वो मोस्टली मैच नहीं होगा, सिर्फ पैसे ऊपर नीचे होंगे इसमें। तो कैसे होता है एक एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन? एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में हम डोनर के सेल्स देते हैं। डोनर के सेल्स मतलब जैसे कि आपने ब्लड डोनेशन देखा होगा, जैसे उससे ब्लड डोनेट, जैसे ब्लड लिया जाता है वैसे हम लेते हैं, उसको साथ में हम मशीन में प्रोसेस करते हैं, जो सेल हमें चाहिए वो हम ले लेते हैं। साइड बाय साइड हम पेशेंट को बीएमटी यूनिट में एडमिट करते हैं मदर के साथ। ये बीएमटी यूनिट कंप्लीटली एसेप्टिक प्रिकॉशंस में रहता है, मतलब यहाँ पे पूरी साफ सफाई, नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये करते हैं। फिर हम उसको 7 दिन तक एक छोटा सा कीमो का रेजिमेंट देते हैं ताकि उसके थैलेसीमिया वाले सेल मर जाए। 7वें दिन हम ये जो सेल हमने कलेक्ट किए होते हैं वो हम उसको दे देते हैं। जैसे कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बोतल दिखाई गई है वैसे ही दिया जाता है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता। ट्रांसप्लांट मतलब वो बॉडी निकाल के दूसरा बॉडी नहीं डालते, हम उसका बोन का पदार्थ मार देते हैं और उसमें उसके सिबलिंग का ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह साधारण तरीके से वो सेल देते हैं। फिर धीरे धीरे उस डे फ्यूजन को हम लोग डे 0 बोलते हैं, और उसके बाद धीरे 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 उसके सेल्स बढ़ने लगते हैं और 21 दिन में हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। इसमें क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि उसको थोड़ा सा फीवर आएगा या हमें उसको ब्लड से या प्लेटलेट से सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ग्राफ्ट वर्सेस जीवीएचडी या होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट के रिएक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से एक बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ही टॉपिक लेंगे, जिनको इंटरेस्ट है उसको हम बताएंगे। अगर आपका एचएलए मैच है तो उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाएगी बच्चों को ट्रांसप्लांट के लेने से पहले, कि उनका एज क्या है, उनका लिवर का साइज क्या है, उनका एचबी कितना है रहता है मेंटेन, उनका स्प्लीन का साइज क्या है, उनका एमआरआई पे कितना आयरन ओवरलोड दिखा रहा है, सेरम फेरिटिन कितना है, ये सारी चीजें को हम लोग ये करते हैं और फिर हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक पेसेरो क्लास है जिसमें मतलब हमें फेवरेबल कौन सा है, नॉन फेवरेबल कौन सा है, ये करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी ये सारा तो हमने बता दिया कि ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। जैसे कि एचएलए मैच सिबलिंग होना चाहिए तो हम ट्रांसप्लांट के लिए लेते हैं। अगर एचएलए मैच सिबलिंग नहीं है तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम रेगुलर ट्रांसफ्यूजन से भी आगे नॉर्मल जिंदगी दे सकते हैं। साइंस उतना तो आगे बढ़ गया है। ठीक है, यूज से हम बात करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में। अल्ट्रासोनोग्राफी आपको साल में एक बार तो करना ही है। उसमें आपको लिवर देखना है, स्प्लीन देखना है, अगर कुछ गॉल ब्लैडर में, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन्स आर वेरी कॉमन इन थैलेसीमिया, तो हमें आगे पीछे वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, वी से होता है वैक्सीनेशन, इंक्लूडिंग कोविड वैक्सीनेशन एंड विटामिन सप्लीमेंट। हर एक थैलेसीमिया को, क्योंकि हमने देखा कि ब्लड बॉर्न डिजीजेस वायरल ट्रांसमिशन हो सकता है, तो आपको हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लेना है लाइफ में एक बार। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हर 5 साल में लेना है, क्योंकि आपको हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इन्फ्लुएंजा का शॉट हर साल लेना है, जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है आपको। इन्फ्लुएंजा मतलब जो हर साल मॉनसून सीजन में आपको सर्दी खोखला वगैरह, क्योंकि हमें इन्फेक्शन से हम लोग बहुत ज्यादा ये होते हैं, इसीलिए हमें उनसे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेना है। अगर आपने कोविड वैक्सीन नहीं लिया है तो प्लीज टेक इट, इट इज कंप्लीटली हार्मलेस फॉर अस, कुछ नहीं होता। ट्रांसफ्यूजन के आप ट्रांसफ्यूजन के साथ भी ले सकते हैं, बट इट इज प्रिफर्ड कि आप ट्रांसफ्यूजन के 2 दिन बाद लें, ताकि आपका ट्रांसफ्यूजन भी हैम्पर ना हो और आपको जो अगर थोड़े से माइल्ड रिएक्शन आए तो आपका एचबी अच्छा खासा मेंटेन रहे, जिससे आपका ट्रांसफ्यूजन मेंटेन। विटामिन सप्लीमेंट्स, तो अभी ये बहुत ही छोटा सा चार्ट है लेकिन ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमें अपने आयरन चेलेटर्स लेने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमें टी कॉफी लेना है, कैल्शियम लेना है।
ठीक है। जो फूड में हमें एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि हमने जैसे आगे बोला था कि जिसमें जिंक सप्लीमेंट ज्यादा हो, वो सारी चीजें हमें लेनी है। एंटीऑक्सीडेटिव कंपाउंड मतलब विटामिन सी जिसको हम लोग देते हैं, विटामिन ई मतलब आपको फ्रेश फ्रूट्स खाने, ठीक है। उसके बाद आपको हाइड्रोक्सीयूरिया एस्पिरिन अगर आपको चालू किया गया है तो, क्योंकि अगर आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम में पीटीटी बहुत ज्यादा है तो आपको विटामिन डी लेना ही है और आपको एक्सरसाइज भी करना है, ठीक है। कभी कभी हम किसी किसी बच्चों को जोलेंट्रिक एसिड भी चालू करते हैं जिनका एग्जाम बहुत ही खराब होता है, ठीक है। अगर आपको एंडोक्राइन की प्रॉब्लम्स है तो आपको हार्मोन सप्लीमेंट आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के हिसाब से लेना है। इनइफेक्टिव हेरेथ्रोपोइसिस को हेल्प करने के लिए आपको फॉलिक एसिड लेना है, जिसको हम लोग हर छोटी सी गोली होती है जिसको हम चालू करते हैं हर मतलब हर दिन एक लेने को बोलते हैं। तो ये सारे विटामिन सप्लीमेंट कितना अच्छे से ना एक चार्ट में इन्होंने बता दिया कि आपको क्या क्या लेना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना है, मतलब HB0 तक रखना है, ये सारी चीजें एक ही पिक्चर में आज आ गई है। सो व्हाट वी आर इंसिस्टिंग ऑन फॉलिक एसिड और विटामिन सी सप्लीमेंट, टी कॉफी आफ्टर योर फूड, टेक योर चैरिटर्स प्रॉपर्ली। अगर आपको एस्पिरिन चालू है तो एस्पिरिन लीजिए, विटामिन डी लीजिए, कैल्शियम लीजिए, सिंपल। एंड जिंक सप्लीमेंट अगर आप कैल्फर पे है तो लीजिए। एक्सरे अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपका अगर आपको बोन डिफॉर्मिटीज है ऐसे करके, तो आपके एक्सरेज किए जाएंगे। कभी कभी ये सारे एक्सरे फीचर्स आपको दिखते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगी क्योंकि ये सब बच्चों में नहीं दिखते। जिंक, मैंने एक लेटर बीच में ऐसे चोरी किया है, वो मैं एंड में प्रेजेंट करूंगी। जिंक जो होता है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो छोटी सी चीज होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये मोस्टली हम जब खाते हैं उसके सारे प्रमाणित में जितना हमें चाहिए उतना हमें मिल जाता है। ये जिंक जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी मेंटेन करने में, और बहुत ज्यादा एनर्जी, बोन डिवीजन, आपकी इनफर्टिलिटी और ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैलेसीमा में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कैल्फर होता है ना, वो कैल्फर आयरन के साथ साथ ना थोड़ा बहुत जिंक भी बॉडी के बाहर निकाल देता है। तो अगर जिंक कम हुआ ना तो क्या होगा कि आपकी जो प्यूबर्टी प्यूबर्टी वो होती है कि आप जब छोटे बच्चे से मर्द या औरत में कन्वर्ट होते हो, जैसे कि आपकी दाढ़ी आना, मूछ आना, आपको वो वॉइस हस्की होना, वही सारी चीजें जो प्यूबर्टल चेंजेस होने चाहिए ना, अगर वो जिंक की कमी हुई ना तो वो डिले मतलब एंड में आएंगे। ग्रोथ बराबर ना होना, आपको डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, ठीक है। इसके लिए हमें जो होता है ना वो जिंक पे ज्यादा ध्यान देना है। और हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जब हम मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स या फिर जिंक सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें हम लोग ये सारी चीजों की देखभाल करने के लिए, कैल्फर के साथ ये बहुत होता है। और कैल्फर की साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होती है जब आप जिंक डेफिशिएंट होते हैं, इसीलिए भी जिंक का लेवल मेंटेन करना कैल्फर के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको अगर आपको बहुत सुस्ती वगैरह या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जिंक सप्लीमेंट चालू नहीं किए गए, तो या तो आप मल्टीविटामिन विद जिंक ले सकते हो अपने डॉक्टर से पूछ के, या फिर सिर्फ जिंक ले सकते हो। ये कर से जिंक किस किस में प्रेजेंट होता है, सी फूड में प्रेजेंट होता है, चिकन या एग आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, लेग्यूम्स मतलब जो हम लोग मूंग खाते हैं, चने खाते हैं स्प्राउट के फॉर्म में, और नट्स में, आलमंड और वॉलनट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपका एक बैलेंस डाइट रहा जिसमें आप मतलब फ्रूट्स भी खा रहे हो, नट्स भी खा रहे हो, वेजिटेबल्स भी खा रहे हो, फ्रेश चीजें खा रहे हो, तो आपका जिंक लेवल वैसे ही नॉर्मल रहेगा। जो मैंने बीच में आर्टिकल मिस किया था दैट वाज व्हाई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सब करना है बिकॉज यू मेक डिफरेंस टू दिस वर्ल्ड। ये ABCD तो बाद में आएंगे, जब तक आप अपना ये सब अच्छे से ख्याल नहीं रहोगे, आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, तो ये सब का कोई फायदा नहीं है। इतना दो सेमिनार करके इट इज ऑल यूजलेस अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो यू शुड गिव दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यू आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, एंड यू आर वेरी वेरी प्रिविलेज कि आपके माँ बाप ने इतना देखभाल किया है। एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, जो दिन रात एक करके दे आर हेल्पिंग यू आउट, दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू, कि वो कोविड में भी ब्लड अरेंज कर रहे हैं, वो कहीं से भी मेडिकेशंस ला रहे हैं, एंड
यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन. अगर आप वो सेल्फ लव डेवलप नहीं करोगे, आप अपने आप में वो हुनर नहीं देखोगे ना, तो ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं है. एंड फॉर मी डेफिनेटली यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माई लाइफ. आपको कैसे अच्छा रखना है, दैट इज द ओनली एम. सो आपको लगता है कि कुछ चीजें आप यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पा रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली मेल अस on Moon Foundation, or you can contact us with anything. You can contact me on Facebook, on Instagram, or whatever way it is. And thank you कि आपने इतने बड़े PPT को इतने ध्यान से सुना. Thank you so much. Thanks a lot, ma'am. Ma'am, we will just take some questions that we have. Bhumika? Okay. Are there any questions in the chat? Yeah, there are 2 in the chat. Oh, I'm not able Okay, to I see will any. just read it out. So the first question is by Mr. Jatin. He asks, if blood bag is leuko reduced by Buffy coat method, do we Yes. need bedside filter? Yes. See, जब हम बफी कोड से भी रिमूव करते हैं तब उसका लॉग 10 मतलब ये लॉग जो होता है ना, वो वैल्यू होता है कि इतना 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 कम हुआ है. ठीक है. अगर आप बफी कोड से भी रिमूव करते हैं, देन ऑल्सो यू विल नीड ल्यूकोसाइड फिल्टर. प्लीज अवॉइड ल्यूकोसाइड फिल्टर ओनली अगर आपका ब्लड लैब फिल्टर है या इनलाइन फिल्टर है. फिल्टर करने के 3 तरीके होते हैं कि आप इनलाइन बैग यूज करो, मतलब वो बैग ही ऐसी यूज की जाती है ब्लड बैंक से कि वो वहां पे कलेक्शन के टाइम पे ही वो फिल्टर आउट हो जाए. फर्स्ट थिंग, इट इज द बेस्ट मेथड. सेकेंड थिंग इज, एक जो होता है कि इनलाइन फिल्टर, मतलब जब हम आपकी बैग को तैयार करते हैं लैब में, तब हम वो लाइन से आपका वो कनेक्शन करके वो इनलाइन फिल्टर कर देते, उसको बोलते हैं लैब मेथड. एंड द थर्ड थिंग इज bedside method. Bedside method में we buy a filter, instead of putting a blood set, we spike it with a filter. जैसे आपको छन्नी जैसा वो दिखेगा जिसमें वो फिल्टर होता है. लेकिन जब बफी कोट मेथड से भी रिमूव किया जाता है उस ब्लड को, तो वो इतना ज्यादा ल्यूकोसाइट रिड्यूस नहीं होता या डिप्लीट नहीं होता, इसीलिए हम उसको फिल्टर भी लगाते हैं. मोस्टली सारे ब्लड बैंक्स आपको बफी कोट से रिमूव करके देते हैं, बट देन ऑल्सो वी प्रेफर कि आपको एक ल्यूकोसाइड फिल्टर आपको यूज किया जाए. Okay, ma'am. The next question is by Mr. Ravinder. He is Yes. asking if saline wash blood is required. Is saline wash blood required Same way, bedside yes, filter? we will require a filter. Right, ma'am. Okay, Mr. Pramod wants to ask a question about vaccination, so I will just unmute him. For those of you who don't know, जो जतिन सर है जिसने अभी मुझे क्वेश्चन पूछा था, he is the thalassemia warrior from Pune. He is very active in Thalassemia Pune Society, and he is a founder member of Youth Thalassemia Alliance, which is working for Thal Matrimony. ठीक है. And I have been a very long association with Jatin sir, and he has helped me a lot from my fellowship days. And he is, उनको ना मतलब जो लोग जानते नहीं है वो लोग उनको डॉक्टर ही बोलते हैं, बिकॉज ही हैज ऑलमोस्ट दैट काइंड ऑफ नॉलेज, और वो प्रेजेंट भी वैसे ही करते हैं, और उनके सारे जो मैसेजेस होते हैं वो सारे आर्टिकल्स और लेटेस्ट डिस्कवरीज और वही सब होते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने पूछा था, दैट इज रविंदर दुदेजा, जो फाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया फरीदाबाद के ओनर है. He is one of the member of Thalassemia India, a very active member. And जितना भी अभी हैंडीकैप और हम लोग जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वो उन्होंने वो पहल किया था, जिसकी वजह से वी हैव ऑल दिस प्रिविलेजेस. एंड प्रमोद बानाटे सर जो है, जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में, ही इज द एक्टिव एंड द कहते हैं ना जान ऑफ थैलेसीमिया लातूर. जो अभी लातूर डिस्ट्रिक्ट में एक लॉ पास हुआ है कि जब एक नया a new couple gets married, the husband and wife won't get a marriage certificate until and unless they provide an HPLC report. So in that way he is नमस्ते सर. नमस्ते मैडम, आप सुन सकते हैं. वैक्सीनेशन के बारे में मेरा ये सवाल है कि
ये निमोकोकल वैक्सीनेशन है हाँ जी। जो वो हर एक पेशेंट को दी जाना चाहिए या नहीं नहीं है कभी? नहीं, निमोकोकल वैक्सीन के बारे में जब हम बात कर रहे थे, वो उनके लिए है जिनका स्प्लीन निकाला गया है ये करके, और उसके लिए भी हमें मतलब ये सारे कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, और उसके लिए भी अगर स्प्लीनेक्टमी के 14 दिन पहले या पोस्ट स्प्लीनेक्टमी 1 महीने बाद। ठीक है। हाँ मैडम, अभी क्या हुआ है कि हाँ। गवर्नमेंट में अभी तक वो निमोटैक्सिन वैक्सीन लॉन्च नहीं हुआ था। करेक्ट। अभी 1 महीना हो गया है कि गवर्नमेंट में निमोकोक्सल वैक्सीन लॉन्च हुआ है। हाँ जी। और 3.5 महीने के बच्चे को 9 महीने के बच्चे के लिए जो हाई रिस्क में आते हैं जो बच्चे, उनको वैक्सीनेशन दे जा रहे हैं। अच्छा। तो फिर अपने बच्चे भी जो थैलेसीमिया के हैं वो हाई रिस्क के अंडर ही कंसिडर होते हैं। हाँ। तो मेरी ये वैक्सीनेशन के बारे में सीएस जो है हमारे लातूर डिस्ट्रिक्ट के, उनसे हाँ। बात हुई थी और उन्होंने बताया, मैं उनके पीछे ही लग गया था कि लातूर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बच्चे हैं जो लिमोकोकल वैक्सीन के लिए जो एलिजिबल है, वो उनके लिए वैक्सीनेशन का एक कैंप रखने का था मेरे को। अच्छा। तो उसके लिए मैं फिर अभी उसका डिस्कशन चालू है, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स उन्होंने बोला कि मैं मेरी तरफ से एक्सपर्ट्स एडवाइस लेके बाद में आपको बताऊंगा कि कब कितने बच्चे के लिए देना चाहिए। तो सर जिन उसके बच्चों में जो बच्चे थैलेसेमिक्स भी है, वो सारे बच्चे मतलब एज एन हाई रिस्क नहीं माने जाते, लेकिन जिनका स्प्लीनिया जैसा काम किया है, जिनका स्प्लीन निकाला गया है, जिनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उन बच्चों को हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बट उसमें जैसे कि जिस सर से आपने बात किया, उन्होंने बोला है कि कमेटी बैठेगी, तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट चीजों के लिए कमेटी बैठेगी, एंड इफ इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल अगर ये सब चीजें हो पाए तो। नहीं, वो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए ही रुका है अभी तक। मैं तो बात मेरी करती हूँ तरीके सर से आपसे, we will form a proper tabular things in written and then we will speak about it, ये करके। थैंक यू। जी सर। ओके, इफ एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन, किसी को भी कोई भी सवाल है तो या तो आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए या तो आप हैंड रेज करिए तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ। या तो अंशुल, ये लेक्चर बहुत ही अच्छा था कि सबको सब कुछ समझ में आ गया है शायद, and nobody wants to ask a question. Yes, ma'am. I think Okay. Ravinder sir Yes, is saying yes, something. हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ सर, आपकी आशीर्वाद। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि जिन बच्चों में हेपेटाइटिस बी सी हो जाता है, और क्या जो वैक्सीनेटेड बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसी प्रॉब्लम आती है? हाँ, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं इस बारे में, लेकिन अभी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का ना सिर्फ गोलियों से इलाज हो जाता है कि 14 वीक्स या 16 वीक से, तो वो उससे वायरल लोड कम हो जाता है और उसकी तकलीफें कम हो जाती है। इसीलिए हम हर साल HIV, HBsAg और HCV का टेस्ट कराते हैं। अगर इनमें से कुछ भी पॉजिटिव आता है तो फिर हम उसमें आगे वायरल लोड कराते हैं। अगर वायरल लोड कुछ लेवल के ऊपर ही जाएगा तो ही हम ट्रीटमेंट करेंगे, वरना हम वापस से 6 महीने बाद या ऐसे करके वो वायरल लोड रिपीट करेंगे। ओके। ये करें। नहीं, एक चीज और भी पूछना चाह रहा था, जिन बच्चों को वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, वैक्सीन वगैरह लग गई है, उनमें भी ये खतरा होता है? उनमें मतलब सर देन इट विल बी वेरी वेरी रेयर कि उनमें ये खतरा होना, क्योंकि एक बार वैक्सीन प्रोटेक्शन हो जाने के बाद वो हेपेटाइटिस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फिर वो बहुत ही रेयर फिनोमेना, मैंने अभी तक नहीं देखा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी हेपेटाइटिस का मतलब उनको इन्फेक्शन हो। मतलब जितने भी हमारे बच्चे हैं सबको हेपेटाइटिस बी सी के इंजेक्शन वैक्सीनेट करवा दें? हाँ, हेपेटाइटिस ए लाइफ में एक ही बार लेना पड़ता है। हेपेटाइटिस बी का बूस्टर जब हम बचपन में 18 वीक्स में तो हम देते हैं, उसके बाद हर 5 साल में देना है। ओके, ठीक। और सी के लिए कुछ नहीं है? थैंक यू सो मच सर। Okay, ma'am, I see that there are no more questions, but just some reflections for you, especially in the comments. So I would like Bhumika to please say the vote of thanks.
Yeah, just a huge thank you from everyone. And this time we had less questions. मतलब आपने अच्छे से सब समझाया. तो या तो कुछ भी समझ नहीं आया है, दो ही नहीं चीजें नहीं, because it was so detailed. Thank you. I don't think anybody had any more questions. But just a huge thank you from the BTF community, and thank you for everyone for joining. Thank you so much for giving me this platform. I actually look forward for every Sunday now. कि जब Sunday आएगा मैं 5 से 6 सबको मिलूंगी and I will have this interaction. So thank you for such a good initiative, and thank you so much for connecting me to, from Faridabad to Latur to Baroda to Pune and everywhere else. And I'm sorry if I missed out some state or some, connecting me to India. Thank you so much. Thanks a lot, ma'am. Thank Thank you. you. Bye. Bye, ma'am. Bye-bye.